welcome back to my YouTube channel. Starting the day with some basic skincare, just moisturizer and sunscreen because we are keeping things simple and protected. And of course, here's a little homeless fit check. Quick update, we have a beautiful flower situation over here. If you're a lily expert, you'd probably know this, but apparently you're supposed to remove the male part of the lily flower to help it last longer and prevent pollen from getting everywhere. So that's exactly what we are doing today, and look at them now. Also, fun fact, this is actually my shoe cabinet. Nobody ever guesses it correctly. I got it from Banjara Market and honestly, one of my favorite finds. Let me know in the comments if you'd like to see a full home tour video because I would love to show you around. Now it's hydration o'clock. So we are having some fresh coconut water because we are trying to be healthy and hydrated girlies. Next is salad prep. So we are picking up some asparagus, tomatoes, paneer, carrots, cucumber and baby corn. Time for chopping, and here's a little ASMR moment for all of you because why not? Now about asparagus, I have a confession. This is actually pretty new for me too. Seen people rave about it online, but I have never really cooked with it much. So we are basically discovering together how it tastes and whether it deserves all the hype. Stay tuned for the verdict. Once all the veggies are chopped, I'm adding some olive oil to a pan, followed by onion, asparagus, baby corn, paneer, bell peppers, and carrots. While everything is getting nice and sauteed, let's make the dressing. For dressing, I'm using the same ingredients from my last video. If you missed the video, definitely go check it out once and let me know. Now let's transfer all the gorgeous sauteed vegetables in the bowl. Adding a little leftover feta cheese because we don't waste food in this house. And finally, the star ingredient, the amazing Pahadi masala. Guys, when I tell you this thing is addictive, I mean it. It adds the most incredible flavor and instantly upgrades the entire salad. So obviously, we are adding a generous amount of this into my salad. Hi guys, so the salad is ready and let's do a taste test. Good. Let me taste this. Asparagus. So basically, it tastes like a regular green vegetable, something which is also very crunchy. What? It has, I think, no taste. But the fact that it is crunchy, it promotes hormone balance. My favorite part is the sweet corn. Very good. मैं ये अकेले रह रही हूँ, इसीलिए ये सब सैलेड वालेड बना ले रही हूँ अपने लिए, ठीक है. अगर मैं घर पे होंगी ना, तो मैं यूजुअली आई डोंट गो टू किचन अ लॉट व्हेन माय मॉम इज़ एट होम एंड आई होप एवरीबडी रिलेट्स टू दैट. पता नहीं मम्मी आती है पैर किचन की तरफ बढ़ते ही नहीं है. मतलब दिस इज़ बैड एज वेल बिकॉज वी हैव लाइक ट्रेन्ड आवर ब्रेन्स की हमारी मम्मी किचन में ही रहेगी एंड शी बिलोंग्स देयर इज़ द आइडिया दैट मे बी वी गेट. बट दिस इज सैड. मेरी मम्मी वैसे आने वाली है 24 जून के अराउंड, सो आई मेक दिस सैलेड फॉर हर एज वेल. आई डोंट नो इफ शी लाइक इट और नॉट, क्योंकि मैं बहुत कम तेल में चीज़ें बनाती हूँ और मम्मी को पसंद है तेल, बहुत सारा तेल. मेरी बहन को भी. मेरी बहन, माई सिस्टर कैन नॉट ईट दीज फूड्स. मैंने एक बार इसके लिए मैक्सिकन बरीटो बोल मंगाया था.
मुझे ये क्या है, मुझे दुनिया पागल है इस बोल के लिए, और आपको पसंद ही नहीं है। फिर सर को रात को पोहा खिला दो। An eternity later. I have finished it all on my own. So the beauty of eating salads every day is a lot because it gives you beauty. Stop it. Get some help. तो बेसिकली अगर आप सैलड्स डेली खाते हो तो योर स्किन गेट्स बेटर, बट माय ब्रेन डजंट नो दैट मेरा रीजन सुंदर दिखना नहीं है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, बट मेरा रीजन है फैंसी खाना। मतलब आई कैन ईट इवन अ सिंपल सैलड, बहुत ज़्यादा सिंपल सैलड भी मुझे पसंद आ जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी। सो लाइक लास्ट ईयर से, और आई वुड से कि इस साल से ही मैंने सैलड्स को खाना ज़्यादा प्रेफर कर दिया। तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड? सो बेसिकली क्या होता था कि आई यूज्ड टू डू वर्क ट्रैवल्स अ लॉट, एंड काफ़ी बार यही होता था कि मैं जब भी वर्क ट्रैवल करती थी तो एक होटल में स्टे करना होता था, एंड वहाँ पर खाना मंगाना होता है। अब मेरी एपेटाइट इतनी ज़्यादा कम है, कोई भी खाना मंगाओ, अगर मैं सपोज पनीर की सब्जी मंगा ली मैंने और रोटी मंगा ली, ठीक है, और रोटी तो देते नहीं है, वो लोग देते हैं तंदूरी रोटी, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। पता नहीं क्यों लोगों को तंदूरी रोटी पसंद है, पर ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं और मैं एक अलग प्रजाति की इंसान हूँ। वेन एवर आई ऑर्डर, वो कम से कम 2 या 4 लोगों का खाना होता है मेरे हिसाब से, मेरे जैसे 4 खा सकते हैं वैसे, ठीक है, मैं उसको 2 टाइम चला सकती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, वो होता है बहुत ऑयली, और मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है नहीं मेरे साथ, तो इसीलिए आई डू नॉट ईट बाहर का खाना ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। तो अनलेस इट इज़ पानी पूरी एंड चटपटे स्टफ्स, ठीक है। सो इसलिए मैं जब भी होटल जाती थी तो आई डिस्कवर्ड कि क्यों ना मैं आई हूँ इस रेस्टोरेंट में और 700 रुपये की मुझे या 500 रुपये का मुझे खाना भी पड़ेगा, तो क्यों ना मैं 400-500 रुपये का ही सैलेड मंगा लूँ। मैं यूजुअली यही मैंने स्टार्ट कर दिया कि यार सैलेड उस टाइम पे, मतलब जो मैंने सैलेड ऑर्डर किया था दैट वाज वेरी टेस्टी, एंड वो ग्रीक सैलेड था बेसिकली। तो व्हेन आई केम बैक टू माय प्लेस, एंड जब मैं, मतलब यूजुअली जब भी ट्रैवल करती थी तो मेरा रोज का हो गया था कि मैं या तो सैलेड मंगाऊंगी या फिर पास्ता मंगा लूंगी। पास्ता इज स्टिल बेटर ऑप्शन, ठीक है। नाउ व्हेन माय ट्रैवलिंग थोड़ा सा गॉट अ ब्रेक, तो आई यूज टू स्टे एट होम, तो आई थॉट कि अगर बाहर भी खा रहे हैं पैसा लगा के, तो घर पे भी बना सकते हैं, लाइक इट वुड कॉस्ट मच लोअर, और हेल्थ भी शायद बन जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में सबसे बेसिक बेसिक सैलेड बनाया, सिर्फ वही खीरा, गाजर, टमाटर और चिकपीस वाला सैलेड बनाया। फिर मैंने एक दिन लेटस मंगाई, फिर उसको सैलेड, तो उससे मैंने ये सैलेड 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 करना स्टार्ट कर दिया। इतनी ज़्यादा भी चैंपियन नहीं हूँ मैं कोई सैलेड ओलंपिक्स की, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और आप अपने सैलेड्स को बहुत ज़्यादा फैंसी बना सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी ऑप्शन है और बहुत हेल्दी भी, अगर आप अकेले रह रहे हो तो, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, या फिर लाइक सपोज अगर आप रूममेट के साथ रह रहे हो, तब तो आप एक जना रोटी बनाता है, एक जना वो कर सकता है, मतलब देख, यू कैन हेल्प और यू कैन जस्ट गेट अ कुक, ठीक है। तो वो ऑप्शंस हैं। बट इफ यू लिव अलोन एंड यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी कुक, तो आप अपने लिए एक बेसिक बेसिक सैलेड भी बना सकते हो। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास हमेशा फैंसी सब्जियां हो या ना हो। अगर आप लोकल स्टोर में जाओ, वहाँ पे जो हम खीरा, गाजर, टमाटर तो खरीदते ही है, तो वही अगर आप खरीदो आलू की जगह, फिर आप वही खरीदो। और सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन पनीर है, पनीर के बाद चिकपीस एंड काला चना है and rajma hai, so you can also soak rajma and replace paneer if you're not taking paneer, like lactose intolerance वाला अगर केस है तो। जब आप ऐसा खाना खाते हो तो आपको अच्छा फील होता है, यू नो, यू गुड फील गुड एज वेल, मतलब अंदर से यू फील गुड, बाहर से इफ एनीबडी कैन टेल दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो या, दिस इज हाउ आई डू माई लंच। मैं, ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी खाती नहीं हूँ, रोटी सब्जी भी खाती हूँ। कल रात को मैंने कटहल बनाया था एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। वही ना, एक
अकेले रहने का ना, आई डोंट नो इफ एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और नॉट, बट अकेले रहने का यही एक वो है कि अब क्या बनाओ, मतलब एक कुछ भी बना दो, इतने 36 लोगों का खाना बन जाता है, ठीक है। और आप 2 लोगों में बनाओगे कम पड़ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप जब अकेले रहते हो, अगर मैं चावल मेजर करके 1 कटोरी से आधा लेके थोड़ा बनाऊंगी, तब भी वो ज्यादा ही हो जाता है, फिर पेट भर के खाओ और फिर फेंका जाता है। कोई मतलब है इस बात? सैलेड में ये है कि अगर आप ज्यादा भी खा लेते हो ना, तो आपका पेट खराब नहीं होगा, मतलब मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है टच वुड, की पेट खराब नहीं होता अगर आप ज्यादा खा, मतलब ज्यादा बना लिया और बच गया। आपने देखा था क्वांटिटी ऑलमोस्ट वॉज फॉर 2 people, बट आई एट इट। और मुझे शायद मोटे होने का भी इतना डर नहीं होगा इतने सैलेड खा के, एंड आई विल बी फुल टिल लेट, लाइक 7 बजे तक मुझे भूख नहीं लगेगी, फालतू की स्नैकिंग वैकिंग भी करने की जरूरत नहीं है। तो हेल्थ वाइज इज इट्स ऑल्सो गुड, और एक जने के हिसाब से इट्स ऑल्सो गुड। तो यू कैन फिगर आउट कि आप कैसे सैलड आपको बनाना है या नहीं बनाना है। मैं पता नहीं क्यों सैलड की वकील बन रही हूँ लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है सैलड खाने से, दैट थोड़ा बहुत स्किन इज बेटर, और एक फ्रेशनेस रहती है शायद आपके अंदर, मतलब एक आपका डाइजेशन बेटर रहता है, हार्मोनल आपका थोड़ा सही रहता है। तो ये कुछ कुछ चीजें सही रहती है, बाकी मतलब वो जाएगा ना कि जब आप बाहर का कुछ खाते हो तो यू वोंट बी दैट गिल्टी कि मतलब हमने तो एकदम ही खराब खाना खा लिया, बट आप बैलेंस भी कर रहे हो with salads. So you can follow me for that reason, क्योंकि I'll be sharing a lot of salad cooking series, and we will make salads together. And if you like this kind of salad, अगर आपको लगता है कि you can make this at home, all the stuff, if you're living in a city, then you can easily order it on Blinkit, ठीक है। लेकिन आपको कुछ आइटम प्लस माइनस करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आप आराम से यू कैन ऑल्सो शेयर योर सजेशंस और कमेंट्स की what kind of salads would you like to see जो I would try for you. I'm a vegetarian वैसे तो I can only try vegetarian salads. ये basically मेरे लिए motivation है to eat healthy. Rest is a different story कि अगर अब मुझे फिर भी कोई फायदा नहीं होता है इतना हेल्दी खा के, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, राइट। बट हम कर रहे हैं अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, राइट। और करना भी चाहिए आपको भी। ये जो आपको डबल चिन दिख रही है ना बोलते बोलते, ये मेरे को आज अंडर कॉन्फिडेंस दे रही थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी, बट आई एम टॉकिंग हियर एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू जिम। बाय द वे वुड सजेस्ट दैट आप लोग भी सैलड्स खाओ और टेस्टी खाओ, ठीक है। मेक योर सैलड्स टेस्टी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सैलड्स बोरिंग ही होते हैं, इट्स ये क्या है खीरा टमाटर प्याज, ये नहीं, दे कैन बी इंटरेस्टिंग। इट्स जस्ट कि आप कौन सी ड्रेसिंग डाल रहे हो उसमें, कैसे बना रहे हो। थोड़ा झाम आपको लगता है ना कि शायद बहुत झाम होगा, बट ऐसा नहीं है। जितना टाइम कुकिंग में लगता है उतना ही टाइम सैलड्स में लगता है, ठीक है। सैलड्स विल कीप यू मोर फुल, एंड आपको कोई फालतू की डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे, और बल्कि इजी है। देखो अब मैं रोटी के बनाऊंगी, रोटी बनाने जाऊंगी तो सबसे पहले अकेले के लिए आटा सानो, फिर उसके अकेले के लिए फिर रोटी बेलो, फिर सेको, फिर रखो, घी लगाओ, जो भी करो, फिर सब्जी अलग से बनाओ। और सैलड में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सब्जियां काटो, मिलाओ और खाओ, बस दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हमें कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पनीर वनीर में या थोड़ा बहुत जो आप ड्रेसिंग डालते हो उसमें थोड़े बहुत कार्ब्स होते हैं। एनर्जी वाइज इतना डिफरेंस नहीं दिखता है। आप एनर्जी में आपको डिफरेंस लगे तो कॉफ़ी पी लो यार मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ, नॉट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, हालांकि मेरे घर में सारे डॉक्टर ही हैं, बट मैं वो नहीं हूँ, और मुझे 2% भी नॉलेज नहीं है ये सारी चीज़ों की। तो आई डोंट फॉलो मी बाय ब्लाइंडली, बट ट्राई, ठीक है। अगर आप ट्राई करते हो, इट इज़ गुड फॉर यू, गो अहेड, इफ नॉट देन लेट्स go with what we are doing, ठीक है। We did our best, we got our protein, and so yeah, win-win. So that's all for today. Tomorrow maybe I'll be shooting, maybe I'll not, depends on my mood. Soon I'll be doing another vlog as well, and do share your thoughts and comments that what stuff would you like me to do, and we'll do it along. Thank you everyone, bye bye.